Good morning students. I welcome you all in today's lecture of science. Before starting the lecture, you must be familiar with this lab. We are in chemistry lab of your Kishore school. You may have visited this lab earlier also. Sindhu ma'am or Vaishali ma'am may have taken you to this lab to show some metallic reactions, chemical reaction related to acid and base. Now in 10th standard we have a chapter named acid, base and salt. Okay. So in order to study those chemical substance, we have to first make familiar something about them, that is how acid, base and salt work, how they look like or how they chemically react with one another, and the most important thing, how will you identify the given chemical as acid, base and salt. Okay, that is the most important thing which as a student you are supposed to do in a lab. Okay, so today we are going to learn some basic theories and make some basic understanding concept regarding acid, base and salt. Okay, starting with, you can see on the blackboard I have written something, that is your science chapter 2 acid, base and salt. Okay, in that I have written traditional definition. So what do you mean by that? Traditional definitions are one type of old definitions. These are the older concepts which we use in our country to identify the acid and base. Okay, for example, if we talk about the acid, you can see acid are sour in taste. Okay, हमेशा खट्टे होते हैं. ठीक है, कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लो आप. ठीक है, फ्रूट्स तो आप डेली लाइफ में यूज ही करते हो, तो कोई भी सिट्रस फ्रूट आप ले लो. All the citrus fruit have a sour taste. That means they contain one type of acid in them. Okay, for example, if we talk about the lemon, citric acid. If we talk about the tomato, it's a vegetable, oxalic acid. Okay, or if we talk about some food items, for example, your most favorite food item, Chinese, है ना, Chinese noodles and all those things. ठीक है, you find some sour taste when you eat those food items, right? So which type of acid do you have in that? It's vinegar. ठीक है, आपके घर में भी एक विनेगर की बोतल होगी, कभी मम्मी से पूछ के किचन में चेक कर लेना. ठीक है, विनेगर इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड. ओके, सो इट्स अ एसिड, दैट्स व्हाई इट्स अ sour in taste. ओके, देन यू कैन सी फॉर अ बेस. ठीक है, व्हाट आई हैव रिटन इज बिटर इन टेस्ट. बिटर मींस कड़वा. ठीक है, कोई भी चीज खाने के बाद जो आपको कड़वी लगे, ठीक है, यू फील सम बिटर in your throat or in your tongue, that means that compound is nothing but a base. उसे क्या बोला जाता है? बेस. अब आपको मजेदार चीज बताओ, आप मिठाइयाँ खाते हो, राइट? अब जब भी मैं किसी बच्चे को पूछूं मिठाई का टेस्ट क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा? स्वीट. लेकिन अब मैं आपको ये बात बताऊं कि एक्चुअली जो मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होती है, उनको एक तरह से बेसिक सब्सटेंस कहा जाता है. तो यू विल बी सरप्राइज कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ. बेस तो कड़वा होता है, पर हम बात कर रहे हैं स्वीट्स की, वो तो खाने में मीठे होते हैं, तो वो बेस कैसे हुए? सो दे आर बेस. हाउ? वेरी सिंपल. जब आपने देखा होगा, जब आप कोई भी आपकी मनपसंद स्वीट्स डिश जो होती है उसे ज्यादा खा लो, बहुत खा लो, तो शुरुआत में तो मीठी लगती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू कैन फील सम बिटरनेस इनसाइड योर थ्रोट. आपको एट द एंड ऑफ योर टंग जो है ना, जहां से आपकी थ्रोट एक्चुअली शुरू होती है, वहां आपको हल्का सा कड़वापन महसूस होगा. व्हाई? बिकॉज इट्स अ बेस. बिकॉज इट्स अ बेस. तो कोई भी चीज जो खाने में कड़वी लगे, सो इट्स अ बेस. ओके, देन यू कैन सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. ये तो आपको फेमिलियर है, बिकॉज इन लोअर स्टैंडर्ड यू हैव लर्न अबाउट दिस डेफिनेशन, दैट इज दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. व्हाटएवर एसिड सब्सटेंस आर देयर, उनकी खासियत क्या होती है? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सिमिलरली यू कैन टेक इट फॉर बेस. व्हाट दे डू? दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. ठीक है, ये भी चीज आपको पता है. ये सारे एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर बाद करने वाले, लेकिन शुरू करने से पहले हम वी आर गेटिंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, देन इज द थर्ड डेफिनेशन फॉर बेस, दैट इज स्टिकी इन टच. जो भी चीज फिजिकली जब आप उसे टच करते हो, इफ यू फाउंड सम स्टिकीनेस, ठीक है, दैट मींस इट्स अ बेस. फॉर एग्जांपल, जिस शुगर की मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा ना शुगर इट्स अ बेसिक कंपाउंड. ठीक है, आप उस शुगर में थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है, then you physically touch that sugar. What will you observe in your hand, in your fingers? You find some stickiness, right? So that stickiness is just a behavior possessed by a basic compounds. Whenever any basic compound is there, it surely have some sticky nature. So that means what we can learn is, apart from bitter in taste, what we can say is कि basic compounds are sticky in touch. Now give me one example of any such substance in your house which you are using in daily life, on daily basis. थोड़ा सोचो, ऐसी कौन सी चीज है घर में जो बेस है?
जो आप रोज यूज करते हो, सुबह उठते हो उसका यूज करते हो, कौन सी ऐसी चीज है? ठीक है, दैट इज योर बाथिंग सोप। ठीक है, कभी उसको टच किया है? बहुत स्लिपरी होता है, स्टिकी होता है ना? दैट मीन्स इट्स अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, उसके अंदर कुछ बेसिक कंपाउंड्स डाले जिसकी वजह से उसके अंदर वो बेसिक बिहेवियर आ चुका है, बेसिक थिंग आ चुकी है उसके अंदर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट एसिड एंड बेस, जो आपको पहले आपने पढ़ी है। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, you have already learned all about acid and base in your lower standard, we are just recalling it। ठीक है, हम उसको वापस दोबारा याद कर रहे हैं। so when we are talk about acid, they are sour in taste, they turns blue litmus paper red. if you talk about base, they are bitter in taste and they will turn red litmus paper blue, and one more extra property they had is sticky in touch। ठीक है, now what about salt? तो salt की बात करें, if you talk about salt, so they are tasteless। ठीक है, उनके पास कोई टेस्ट ही नहीं होता, दे आर टेस्टलेस। ठीक है, ना वो खट्टे होते ना ही कड़वे होते, उनके पास टेस्ट ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल योर सॉल्ट, आप घर में जो कुकिंग सॉल्ट यूज करते हो, ठीक है, क्या है? इट्स अ सोडियम क्लोराइड, सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ प्योर सॉल्ट। ओके, देन लिटमस पेपर की बात करें, सो नो इफेक्ट, दे हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, उनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो वन बाय वन हम चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल लर्न एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स पड़े, ठीक है, हम उनका सॉल्यूशन लेके बैठे, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सॉल्यूशंस आर एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। हम किसका मदद लेंगे? लिटमस पेपर। लेट्स सी, देखो मैं 3 सॉल्यूशन बना रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इसमें मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। आई नो व्हाट इज दिस सॉल्यूशन इज, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपको तो नहीं पता, मुझे पता है क्या है, लेकिन आपको पता है नहीं। तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। सपोज आई टेक सम mls ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1, आपके सामने में से यहाँ रख रहा हूं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, देन आई टेक सेकंड टेस्ट ट्यूब, इसमें कुछ सॉल्यूशन ऐड करके रखते हैं। सपोज आई टेक सॉल्यूशन दिस, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन मैंने ले लिया, मैंने इसे यहाँ रख दिया। मैं फिर और एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं वेट ठीक है, ये मैंने एक थर्ड सॉल्यूशन जस्ट रैंडमली ले लिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी दी 3 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों में एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों सॉल्यूशन है, लेकिन आई डोंट नो कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। सो मुझे किससे आइडेंटिफाई करना है? सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस लिटमस पेपर। सो आपको लिटमस पेपर की प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है, जनरली 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, वन इज ब्लू वन एंड वन इज रेड। व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी? कि व्हेन वी डिप एनी ब्लू लिटमस पेपर इन अ एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। सिमिलरली व्हेन वी पुट दिस रेड लिटमस पेपर इन एनी बेसिक सॉल्यूशन इट विल टर्न्स ब्लू, है ना? यानी रेड लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आने पे तुरंत रेड हो जाता है, और ब्लू रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आने पे तुरंत ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो हम इनकी मदद से हम इन तीनों सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। ओके, सपोज आई टेक दिस ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अब इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 1, ठीक है, now what I will do, now will I check this litmus paper one by one for each of the solution which I have put in the test tube stand। ठीक है, so this is my first solution। चलो अब इसके ऊपर लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट है, लेट्स सी हाउ वी विल चेक इट। just put the litmus paper on the mouth of your test tube, just put your thumb on the mouth of the test tube, one finger at the bottom of your test tube and then just invert your test tube, उसे इन्वर्ट करके वापस सीधा कर दो। ठीक है, then you will see the change। so what is the impact of that solution on the litmus paper? you saw that your blue litmus paper is totally turns to red। what does that mean? that mean that solution in this test tube is acidic। क्या है इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन लिया गया है वो क्या है? एसिडिक है। ओके, चलो लेट्स चेक इट फॉर अदर 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बिफोर डूइंग दैट आई सपोज टू वॉश माय हैंड बिकॉज मेरे फिंगर्स पे एसिड सॉल्यूशन लग चुका है। तो अगर मैं इस
विदाउट वॉश किए हुए अगर मैं लिटमस पेपर को टच करूंगा तो ऑटोमेटिकली वापस रेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेक दैट सेकंड टेस्ट ट्यूब, टेक योर लिटमस पेपर, ओके, पुट इट, अगेन डू द सेम थिंग, इन्वर्ट करो, सी इज देयर एनी चेंज? ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू. There is no change in color take place on blue litmus paper. What does that mean? That means the solution in this test tube is either basic or neutral. ठीक है, एसिड तो नहीं हो सकता. हमेशा हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं. When we do any litmus test for a solution, we always have three option for us. Either it's acid or base or salt. Okay, so acid तो नहीं होगा because blue litmus paper blue रह गया. That means या तो ये न्यूट्रल है या तो ये बेसिक है, ठीक है। उसी तरह से हम अब थर्ड के लिए चेक करेंगे, ठीक है। नाउ टेक दी लिटमस पेपर दैट इज ब्लू इन कलर, पुट ऑन द माउथ ऑफ थर्ड टेस्ट ट्यूब, पुट योर थंब, देन जस्ट इन्वर्ट योर टेस्ट ट्यूब एंड सी द कलर चेंज. इज देयर एनी चेंज? नो. सो दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज आल्सो आइदर बेसिक और न्यूट्रल, ओके। नाउ हम अब बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की। तो इसे तो हमने चेक कर लिया था, क्या थी ये? एसिडिक. Why? Because their solution in this test tube has turned the blue litmus paper into red. Okay. Now next. Now I will take the red litmus paper. ठीक है, अब मैं कौन सा लिटमस पेपर ले रहा हूं? The red one. Okay. अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. क्यों? बिकॉज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, इट्स एसिडिक सॉल्यूशन. तो हमें तो खाली टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 3 इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है ना. सो मैं दो हिस्सों में बांट के नाउ आई विल टेक द टेस्ट ट्यूब 2. अगेन आई विल पुट दैट लिटमस पेपर व्हिच इज रेड इन कलर. रिमेंबर दैट थिंग, व्हिच इज रेड इन कलर ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन इन्वर्ट इट एंड सी द कलर चेंज. सी, it's blue in color now. It's a perfect blue color. That means your red litmus paper which you have taken has turns to blue litmus as soon as it come in contact with this solution which is there in the second test tube. So what do you mean by that? That means the solution in second test tube is basic in nature. Done? Okay, now put this down. अब हम क्या करेंगे? अब हम before doing that just I need to wash my hand again. Okay, done. Now take that red litmus paper, take test tube number 3, put on the mouth of the test tube and see what is the color change. See, is there any color change? No. Red litmus paper remains red. So what do you mean by that? The solution in the third test tube is a neutral one. It has neutral property. So when your compound has neutral property, when it is salt by nature, जब वो नेचर से क्या हो, सॉल्ट हो, तो ही वो न्यूट्रल होगा, तो ही वो लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं करेगा. सो दैट इज द लिटमस टेस्ट फॉर यू. ठीक है, सो हमने लिटमस पेपर से क्या सीखा? व्हेन एनी सॉल्यूशन व्हिच इज एसिडिक बाय नेचर, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद रेड लिटमस पेपर remains red. If it come in contact with blue litmus paper turns red. Okay, similarly for basic solution, when it come in contact with blue litmus paper it remains blue, but when it come in contact with red litmus paper it turns blue. Okay, and similarly lastly for salt, whether it come in contact with blue or red litmus paper, there will be no color change on either litmus paper. Blue will remains blue and red will remains red. That is the property of salt. Okay, so